Karma Yoga, the art of finding peace in action. Let's be honest for a moment. Just you and me. Thak gaye ho na? Tired, aren't you? Not just the body. I'm talking about a tiredness deep in your soul. The exhaustion of constantly running. The endless pressure to do more, be more, achieve more. Every single day, it's the same race. The alarm rings, and the hamster wheel starts turning. The emails, the deadlines, the exams, the targets, the MS. That endless checklist in our minds that never, ever gets shorter. We tell ourselves, bas ye ek project ho jaye, then I'll rest. Let me just get this promotion, then I'll be happy. Ye ek baar ho gaya na, life will be set. We sacrifice our peace, our health, our relationships. We put our entire life on hold for a future that we hope will be perfect. And then, sometimes, we get there. We get the promotion. We get the grades. We get the applause. And for a moment, it feels good. There's a rush. But then, what? The applause fades. The excitement dies down. And within a day, or a week, the mind asks again. What's next? And that old, familiar emptiness, wo man ka khalipan, comes creeping back in. The hamster wheel starts again. A little faster this time. Does this feel familiar? This cycle of desperate effort, momentary victory, and lasting emptiness? This feeling that you are constantly working, hustling, fighting, but not actually living? If it does, then this is for you. What if I told you that the problem isn't your work? The problem isn't your ambition. The problem isn't the race. What if I told you that the real chains are not outside you, but inside? The problem is our relationship with our work. There is an ancient, timeless secret. A psychological technology so profound, it can transform the most stressful action into a source of deep peace. It's a secret that allows you to give your 100% to everything you do, and yet remain untouched by the anxiety of the result. A secret to finding joy, not in the destination, but in the journey. A secret to finding freedom, not by running away from your life, but by diving deeper into it than ever before. This secret is called Karma Yoga. It's not a religion. It's not a set of rules. It is the art of action. The science of finding stillness in the middle of chaos. So, take a deep breath. Let that tired soul of yours relax for a moment. Let's begin a journey to understand this art. A journey to unlearn the habits that are causing us so much pain. And to learn a new way to live, a new way to work, a new way to be. Are you ready to get off the hamster wheel, not by stopping, but by learning how to run with grace, with joy, and with freedom? Chapter 1. सबसे बड़ा भ्रम, कर्म योग क्या नहीं है? तो चलिए, अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं. Let's continue our journey. कर्म, कर्मा. ये शब्द हम दिन में कितनी बार सुनते हैं? My karma is bad. Karma will get you. It's just my karma. हमने इस गहरे, जीवन को बदल देने वाले शब्द को एक खिलौना बना दिया है. एक बहाना बना दिया है. We have turned this profound, life-altering word into a toy. An excuse. पर असल में, इसकी गहराई को हम छू भी नहीं पाए हैं. कर्म योग को समझने से पहले, हमें उन सारे भ्रमों को, उन सारे मिथ्स को तोड़ना होगा जो हमने अपने मन में बना रखे हैं. We have to first understand what karma yoga is not. पहला और सबसे बड़ा भ्रम, myth number 1. हम सोचते हैं कि कर्म योग का मतलब है कुछ अच्छे काम कर देना. दान पुण्य करना, किसी की मदद कर देना, a bit of charity here and there. हाँ, ये सब अच्छे कर्म जरूर हैं, but this is not the complete picture. ये पूरी सच्चाई नहीं है. आप करोड़ों रुपए दान कर सकते हैं, पर अगर उसके पीछे आपका मकसद अखबार में अपनी तस्वीर छपवाना है, तो वो कर्म योग नहीं है. आप किसी की मदद कर सकते हैं, पर अगर मन में ये भाव है कि मैं कितना महान हूं, तो वो कर्म योग नहीं है. The action itself is secondary. कर्म तो बस एक बाहरी खोल है. The motive behind it, आपके कर्म के पीछे की भावना, a thought, a desire, is the real seed. महान स्वामी विवेकानंद ने इसी रहस्य को खोलते हुए कहा था. Quote voice, with slight reverb, the great secret of true success, of true happiness, is this: the man or woman who asks for no return, the perfectly unselfish person, is the most successful. जो कोई बदला नहीं चाहता, जो पूरी तरह से निस्वार्थ है, वही सबसे सफल है. तो कर्म योग सिर्फ अच्छे काम करने का नाम नहीं है. यह निस्वार्थ होकर, बिना किसी बदले की भावना के काम करने की कला है. दूसरा भ्रम, मिथ नंबर 2. कर्म योग का मतलब है, अपना फर्ज निभाते चलो. इट्स माई ड्यूटी. ये बात हम अक्सर सुनते हैं. एक बेटा होने का फर्ज, एक कर्मचारी होने का फर्ज, एक पति या पत्नी होने का फर्ज. एंड वी डू इट. हम करते हैं. पर कैसे? एक बोझ की तरह, एक मजबूरी की तरह, बिना किसी खुशी के, विदाउट एनी जॉय. मन में शिकायतें लिए हुए कि देखो,
मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये कर्म तो है, पर यह योग नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, टू यूनाइट। जब आपके कर्म में खुशी न हो, प्रेम न हो, तो वो आपको परमात्मा से या खुद से जोड़ कैसे सकता है? दैट इज जस्ट लेबर। वो तो सिर्फ एक मजदूरी है। कर्म योग उसी फर्ज को, उसी ड्यूटी को एक बोझ से एक उत्सव में, अ बर्डन इनटू अ सेलिब्रेशन, बदलने का विज्ञान है। और तीसरा, सबसे खतरनाक भ्रम, मिथ नंबर 3, ये कि कर्म योग एक तरह का सौदा है, अ कॉस्मिक ट्रांजैक्शन। मैं आज 2 घंटे पूजा करूंगा तो भगवान को मुझे वो प्रमोशन देना ही पड़ेगा। मैं यह व्रत रखूंगी ताकि मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं। अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। ये धारणा, दिस बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी को एक बिजनेस डील बना देती है। और यह हमें शांति नहीं बल्कि चिंता देती है। एंग्जाइटी, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब रिजल्ट मिलेगा या नहीं? मैंने तो अच्छा किया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? दिस अप्रोच फिल्स अस विद एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर एंड बिटरनेस अबाउट द पास्ट। ये हमारे कर्म की सारी सुंदरता को छीन लेता है। तो फिर, अगर कर्म योग ये सब नहीं है, तो आखिर है क्या? What is कर्मा योगा इन रियलिटी? इसके सच्चे अर्थ के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां से यह अमृत बहा है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म का असली रहस्य समझाया। इन द होली भगवद गीता, कृष्ण कहते हैं, कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणि व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोसु कर्मणि, मां कर्मफला हेतुर्भूर माते संग एस्टिवी अकर्माणि। लेट दीज वर्ड्स सिंक इन। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। दिस वन वर्स कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसे तोड़कर समझते हैं। कर्मणेव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में है। योर राइट इज टू द एक्शन एंड टू द एक्शन अलोन। दिस इज द अल्टीमेट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। आप अपने कर्म के मालिक हैं। वट यू डू, हाउ यू डू इट, दैट इज योर किंगडम। मां फलेषु कदाचन, लेकिन उस कर्म के फल पर, द रिजल्ट, तेरा कोई अधिकार नहीं है। नेवर, यह कोई श्राप नहीं, अ कर्स। दिस इज द बिगेस्ट रिलीफ। ये सबसे बड़ी राहत है। द यूनिवर्स, द एग्जिस्टेंस, गॉड, वॉट एवर यू कॉल इट, विल टेक केयर ऑफ द रिजल्ट्स। वो तुम्हारा सिरदर्द नहीं है। यू आर बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द एंग्जाइटी ऑफ द आउटकम। मां कर्मफल हेतुर्भूर, अपने कर्म के फल को, द फ्रूट ऑफ योर एक्शन, अपने कर्म का कारण मत बनने दे। Do not let the result be your motive. Don't work for the promotion. Work because the work itself has value. Don't help someone to get good karma. Help. Help because helping is a beautiful thing to do. Mate sango sugarmani. And finally, the master stroke. और अंत में, कृष्ण कहते हैं, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो. This means you cannot use this teaching as an excuse to become lazy or run away from your responsibilities. Do not get attached to an action. दिस इज कर्मा योगा। ये सौदा नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये दिखावा नहीं है, यह एक रेडिकल शिफ्ट है। यह आपके जीने के ढंग को जड़ से बदल देने की कुंजी है। इट इज द आर्ट ऑफ एक्टिंग विद फ्रीडम, विद जॉय एंड विद लव, विदाउट बीइंग अ स्लेव टू द रिजल्ट। आई नो वट यू आर थिंकिंग, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, बट इज इट इवन पॉसिबल? क्या ये संभव है? बिना फल की इच्छा के कोई काम कैसे कर सकता है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? इसी सवाल का जवाब हम अगले अध्याय में खोजेंगे। चैप्टर 2, रहस्य, बिना आसक्ति के कर्म। मुझे पता है आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। आई नो द क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग इन योर माइंड। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, अ वेरी नोबल आइडिया, पर क्या यह असल जिंदगी में संभव है? इज इट प्रैक्टिकल? मैं नौकरी पर जाऊं और सैलरी की इच्छा न करूं? हाउ? मैं एग्जाम के लिए दिन रात पढूं और रिजल्ट की चिंता न करूं? कैसे? बिना किसी इच्छा के काम करना तो हमें एक मशीन, एक रोबोट बना देगा। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और इसका जवाब कर्मयोग के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। देखिए, कर्मयोग आपसे आपकी इच्छाओं को मारने के लिए नहीं कहता। इट डज नॉट आस्क यू टू बिकम डिजायरलेस। यह आपकी इच्छा को शुद्ध करने, टू प्यूरिफाई योर डिजायर, की बात करता है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी हमारी इच्छा क्या होती है? मुझे प्रमोशन चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। द डिजायर इज फॉर द रिजल्ट। कर्म योग कहता है, इस डिजायर को ट्रांसफॉर्म करो, इसे बदल दो। आपकी इच्छा अब प्रमोशन नहीं, बल्कि उस काम को उत्तम तरीके से करना होना चाहिए। द डिजायर फॉर द फ्रूट ऑफ द वर्क मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द डिजायर फॉर एक्सीलेंस इन द वर्क। द फोकस शिफ्ट्स, मंजिल से हटकर रास्ते पर आ जाता है। इमेजिन एन आर्टिस्ट, एक चित्रकार। जब वो पेंटिंग बना रहा होता है, तो वो दुनिया को भूल जाता है।
उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि यह पेंटिंग कितने में बिकेगी या इसे कितने अवार्ड मिलेंगे। उसका आनंद, हिज जॉय, उस ब्रश के हर स्ट्रोक में है, रंगों के उस मेल में है। वो उस कर्म में पूरी तरह से डूब गया है। द रिजल्ट, द मनी, द फेम, दे आर बाय प्रोडक्ट्स। वो बस एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। कर्म योग हमें अपने हर काम को, चाहे वो ऑफिस की फाइल हो, घर की सफाई हो या किसी मरीज का इलाज हो, उसे एक आर्टिस्ट की तरह करने को कहता है। उस काम को ही अपना इनाम बना लो। मेक द वर्क योर रिवॉर्ड। और इसका सबसे सुंदर तरीका है समर्पण। द आर्ट ऑफ ऑफरिंग। अपने हर कर्म को एक पूजा बना दो, एक प्रार्थना, एक इबादत। यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर बॉस, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर योर प्रोफेसर। इमेजिन दैट यू आर डूइंग इट एज एन ऑफरिंग टू द हाईएस्ट आइडियल यू कैन थिंक ऑफ। परमात्मा को, मानवता को, सत्य को, किसी भी चीज को जो आपके लिए पूजनीय है। जब आप मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो क्या आप भगवान से सौदा करते हैं कि ये लो एक फूल, अब तुम मुझे 10 रुपये दो? नहीं। उस चढ़ावे में ही आनंद है। द जॉय इज इन द एक्ट ऑफ ऑफरिंग। स्वामी विवेकानंद ने इसी समर्पण के भाव को कर्म का केंद्र बताया है। उन्होंने कहा, When you are doing any work, do not think of anything beyond. Do it as worship, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being. जब भी कोई काम करो तो उसके परे कुछ मत सोचो। उसे एक पूजा की तरह करो, सबसे बड़ी पूजा, और उस समय के लिए अपना पूरा जीवन उसी को समर्पित कर दो। जब कर्म कर्म नहीं रहता, पूजा बन जाता है, तो फल की चिंता अपने आप मिट जाती है। फिर सवाल उठता है, तो इसमें मेरा क्या फायदा? What's in it for me? इसका जवाब कृष्ण अर्जुन को देते हैं। जब अर्जुन मोह और दुख के बुखार में तप रहा था, अ फीवर ऑफ सॉरो एंड अटैचमेंट, कृष्ण ने उसे उस बुखार से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। भगवद गीता, अध्याय 3, श्लोक 3। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। लेट्स फील द पावर ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों की शक्ति को महसूस कीजिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके। Surrendering all your actions unto me. यहाँ मैं का अर्थ है वो परम चेतना, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अध्यात्मचेतस, अपने मन को अध्यात्म में स्थित करके। With your mind centered on your true self. निराशी निर्ममो भूत्वा, आशाओं से मुक्त होकर, निराशी और मैं और मेरा के भाव से मुक्त होकर, निर्मम। Free from hope and free from the idea of I and mine. और जब तुम इस अवस्था में स्थित हो जाओगे, तब कृष्ण कहते हैं, युद्धस्व विगतज्वर। युद्ध कर, अपने मानसिक संताप के बुखार से मुक्त होकर। फाइट, बट विदाउट द फीवर ऑफ योर मेंटल एंग्विश। विगतज्वर, फ्री फ्रॉम फीवर। दिस इज द रियल फ्रूट ऑफ कर्मा योगा। यही कर्म योग का असली फल है। द एक्सटर्नल रिजल्ट्स मे और मे नॉट कम। दुनिया के नतीजे आ भी सकते हैं, नहीं भी। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। पर एक फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। मन की शांति, अ पीसफुल माइंड। चिंता के बुखार से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम द फीवर ऑफ एंग्जाइटी। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपका फोकस 100% होता है। आपकी एनर्जी बढ़ती नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। सो इन अ वे यू आर मोर लाइकली टू गेट गुड रिजल्ट्स व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू देम। तो रहस्य यह नहीं है कि इच्छाओं को मार दिया जाए। रहस्य है इच्छा के केंद्र को बदल देना। फल की इच्छा से हटकर कर्म को ही पूजा बना देने की इच्छा। The secret is to transform the desire for the fruit into the desire to make the action itself a sacred offering. यह आसान नहीं है। It's not easy. क्योंकि जैसे ही हम ये करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज आती है। एक छोटी पर बहुत शक्तिशाली आवाज, जो हर बात पर कहती है, मैं, मेरा, मुझे क्या मिलेगा? This is the voice of our ego. ये हमारे अहंकार की आवाज है। और यही कर्म योग के रास्ते पर हमारा सबसे बड़ा रोड़ा है, the biggest obstacle. इसी अहंकार का सामना हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर 3, सबसे बड़ा रोड़ा, अहंकार का सामना। पिछले अध्याय में हमने कर्म को एक पूजा, एक समर्पण बनाने की बात की। वी स्पोक ऑफ टर्निंग आवर वर्क इनटू अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। और हम में से कई लोगों ने यह करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन जैसे ही हम ये कोशिश करते हैं, अंदर से एक आवाज आती है। अ वॉइस इनसाइड आवर हेड दैट फील्स मोर अस देन वी डू। जब काम अच्छा हो जाता है तो वो आवाज कहती है, वाह, मैंने कर दिखाया। आई डिड इट, आई एम ब्रिलियंट। जब काम बिगड़ जाता है तो वही आवाज कहती है, सब मेरी वजह से हुआ। माई लक इज बैड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये मैं, मेरा, मुझे की आवाज। द वॉइस ऑफ आई, मी एंड माइन। दिस इज द ईगो।
यही अहंकार है। ये हमारे मन में बैठा वो किराएदार है जो खुद को घर का मालिक समझ बैठा है। एंड दिस ईगो इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ कर्मा योगा। यही सबसे बड़ा रोड़ा है। ये हमारे हर कर्म में जहर घोल देता है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स नेचर। जब हम कोई काम करते हैं तो दो ही संभावनाएं होती हैं, सफलता या असफलता, सक्सेस और फेलियर। जब हम सफल होते हैं तो अहंकार आकर उस सफलता का क्रेडिट ले लेता है। इट पफ्स अप विथ प्राइड, अभिमान से भर जाता है। यह मेरी मेहनत है, यह मेरी इंटेलिजेंस है, और यह अभिमान हमें दूसरों से अलग कर देता है। यह हमें कठोर बना देता है, और इससे भी बुरा, यह हमारे मन में एक डर पैदा कर देता है। व्हाट इफ आई फेल नेक्स्ट टाइम? क्या होगा अगर मैं अगली बार इतना अच्छा नहीं कर पाया? द जॉय ऑफ सक्सेस इज इमीडिएटली पॉइजन्ड बाय द फियर ऑफ फ्यूचर फेलियर। और जब हम असफल होते हैं तो यही अहंकार टूटकर बिखर जाता है। इट गेट्स डीपली हर्ट, और इस चोट से 5 जहरीले नाग निकलते हैं। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, सब बेकार हो गया। क्रोध, एंगर, दूसरों पर या हालात पर गुस्सा। ईर्ष्या, जेलसी, वो सफल कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं। आत्मदया, सेल्फ पिटी, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। और ग्लानि, गिल्ट, मुझ में ही कोई कमी है। यही वो ज्वर, वो फीवर है जिसकी बात कृष्ण कर रहे थे। द फीवर ऑफ सफरिंग। और इस बुखार की जड़ है अहंकार। द रूट ऑफ दिस फीवर इज द ईगो। तो कर्म योग का रास्ता असल में अहंकार को मिटाने का रास्ता है। इट इज द पाथ ऑफ मूविंग फ्रॉम द डूअर टू द इंस्ट्रूमेंट। कर्ता के भाव से हटकर निमित्त के भाव में आने का रास्ता। ये समझना कि मैं करने वाला नहीं हूं। अ फ्लूट डजंट क्रिएट द म्यूजिक। एक बांसुरी संगीत नहीं बनाती, वो तो बस एक माध्यम है, अ चैनल फॉर द म्यूजिशियंस ब्रेथ। अ पेन डजंट राइट द पोएम। एक कलम कविता नहीं लिखती, वो तो बस एक उपकरण है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पोएट्स थॉट्स। कैन वी लिव अ लाइफ लाइक अ हॉलो फ्लूट? क्या हम एक खोखली बांसुरी की तरह जी सकते हैं, ताकि परमात्मा, एग्जिस्टेंस, अ हायर पावर हमारे जरिए अपना संगीत बजा सके? इसी अवस्था के बारे में भगवद गीता में एक हैरान कर देने वाला श्लोक है। अध्याय 18, श्लोक 17। यासेना अहंकृतो भावो बुद्धिर यासेना लिप्यते हत्वापि स इमालोकान हंति न निबध्यते। कृष्ण कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके मन में मैं करने वाला हूं ऐसा अहंकार युक्त भाव नहीं है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि किसी कर्म या उसके फल से लिप्त नहीं होती, इट इज नॉट टेंटेड। हत्वापि स इमालोकान हंति न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति इस पूरी दुनिया का संहार करके भी असल में न तो कुछ करता है और न ही उस कर्म से बनता है। दिस इज अ शॉकिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जाकर हिंसा करनी है। इसका गहरा मतलब यह है कि कर्म की गुणवत्ता उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि करने वाले की आंतरिक अवस्था, द इनर स्टेट ऑफ द डूअर, से तय होती है। अगर अहंकार शून्य है तो सबसे भीषण कर्म भी आपको बांध नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने इसी अहंकार को मिटाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा, द लेस ऑफ द आई इन मी, द मोर ऑफ गॉड इन मी। मेरे भीतर मैं जितना कम होगा, ईश्वर उतना ही ज्यादा होगा। तो सवाल यह है कि इस मैं को कम कैसे किया जाए? हाउ टू क्वाइट दिस ईगो? इसे लड़कर नहीं हराया जा सकता। द मोर यू फाइट इट, द स्ट्रॉन्गर इट विल बिकम। द पाथ इज ऑफ अवेयरनेस, सजगता का मार्ग। पहली विधि है साक्षी भाव, बिकम अ विटनेस। जब भी मन में अभिमान उठे, मैंने ये किया, तो उसे बस देखो। डोंट जज इट, डोंट सप्रेस इट, जस्ट वॉच इट। जैसे हम आसमान में बादलों को देखते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वो विचार नहीं हैं, आप तो उन विचारों को देखने वाले हैं। दिस वॉचिंग क्रिएट्स अ डिस्टेंस। यही दूरी अहंकार की शक्ति को कम कर देती है। दूसरी विधि है कृतज्ञता, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब भी कोई काम सफल हो तो अहंकार को क्रेडिट लेने का मौका ही मत दो। इमीडिएटली, कॉन्शियसली शिफ्ट योर फोकस टू ग्रैटिट्यूड। उस परमात्मा का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें यह मौका और शक्ति दी। उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारी मदद की। उस परिस्थिति का धन्यवाद करो जो तुम्हारे पक्ष में थी। ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू ईगो। कृतज्ञता अहंकार का विष उतार देती है। अहंकार ही हमारी सारी बेचैनी, हमारी सारी पीड़ा की जड़ है। कर्म योग का मार्ग इसी अहंकार को धीरे धीरे, प्रेम से, सजगता से विसर्जित करने का मार्ग है। इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। हमने समस्या को समझा, आसक्ति। हमने समाधान को जाना, समर्पण। और हमने सबसे बड़ी बाधा को भी पहचान लिया, अहंकार। तो अब अपने अंतिम अध्याय में हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ेंगे। हाउ डू वी ब्रिंग ऑल दिस इनटू आवर डेली लाइफ? अपनी साधारण C9 to 5 की नौकरी को, अपने घर के कामों को, अपनी पढ़ाई को।
एक जीती जागती सांस लेती हुई मेडिटेशन में कैसे बदले? द फाइनल प्रैक्टिकल स्टेप्स आर नेक्स्ट। चैप्टर 4, कर्म ही पूजा। अपने जीवन को ध्यान कैसे बनाएं? हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। वी हैव रीच्ड द फाइनल स्टॉप ऑन आवर जर्नी टुगेदर। हमने कर्म के भ्रमों को तोड़ा। वी अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ एक्शन विदाउट अटैचमेंट, अनासक्ति का रहस्य जाना। और हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त, हमारे अहंकार का सामना किया। द थियरी इज क्लियर, ज्ञान स्पष्ट है। बट नॉलेज इज नॉट इनफ। सिर्फ जानने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है करने से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हाउ डू वी अप्लाई ऑल दिस? इस सब को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? हाउ डू वी टर्न आवर ऑर्डिनरी 9 to 5 life, our daily chores, our studies, into a living, breathing meditation? The beauty of karma yoga is that you don't have to change what you do. आपको अपना काम बदलने की जरूरत नहीं है। You don't have to leave your job, your family, or your city and go to a cave. आपको बस उस काम को करने का, उसे देखने का, अपना नजरिया, your perspective बदलना है। Every single act, from writing an email to cooking a meal, from closing a business deal to changing a baby's diaper, हर कर्म आपके लिए साधना का, spiritual practice, एक मौका बन सकता है। Here are 3 simple, practical sutras, 3 threads, to weave karma yoga into the fabric of your daily life. पहला सूत्र, कर्म के आरंभ का अनुष्ठान। The ritual of beginning. Before you start any important work, just for 30 seconds, stop, आंखें बंद कीजिए. Take a long, deep breath. And mentally, offer this action to your highest ideal. अपने मन में इस कर्म को परमात्मा को, अपने इष्ट को या मानवता को समर्पित कर दीजिए। Say to yourself, ये कर्म मेरा नहीं, आपका है। This action is not mine, it is yours. मैं केवल एक माध्यम हूं। I am only a channel. मुझे शक्ति दो कि मैं इसे पूरी योग्यता और ईमानदारी से कर सकूं। Give me the strength to do this with all my ability and integrity. यह मेरी भेंट है। This is my offering. This small act of dedication does something magical. ये शुरुआत में ही आपके अहंकार को एक तरफ खड़ा कर देता है। It separates you from your ego right at the start. It transforms the work from a burden to a blessing. दूसरा सूत्र, कर्म के दौरान सजगता। Mindfulness in action. While you are doing the work, be fully present with it. पूरी तरह से उसी पल में मौजूद रहें। अगर आप खाना बना रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान सब्जियों के रंग, उनकी खुशबू, चाकू की आवाज पर होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, तो अपनी उंगलियों को, कीबोर्ड की आवाज को महसूस कीजिए। When your mind wanders to the future, इसका रिजल्ट क्या होगा? Or to the past, पिछली बार तो ये गड़बड़ हो गया था। Gently bring it back. वापस, पल में, इसी कर्म पर ले आइए। This is not easy. यह आसान नहीं है। The mind will wander 1,000 times. मन 1000 बार भटकेगा। Your job is to bring it back the 1001st time. आपका काम है उसे 1001वीं बार वापस लाना। यही सजगता, यही माइंडफुलनेस, काम को ध्यान में बदल देती है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, कर्म के अंत का अनुष्ठान। The ritual of ending. When the work is done, when the result is out, whether it is success or failure. फिर से 30 सेकंड के लिए रुकिए। And mentally, offer the result back to where you started. उस फल को भी, उसी परमात्मा को वापस समर्पित कर दीजिए। If you succeed, say, आपकी कृपा से यह सफल हुआ। By your grace, this was a success. The fruit is yours. ये फल आपका है। This will protect you from pride. If you fail, say, मैंने पूरी कोशिश की। I gave my best. The result is also your prasad, your blessing. फल आपका है, आपकी इच्छा। I accept it. This will protect you from despair. ये फल को वापस लौटा देने का भाव, this act of giving back the result, is the highest practice of non-attachment. यही कर्म योग का सार है। Your own work is your greatest prayer. आपका अपना कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। इसी सत्य की अंतिम घोषणा श्री कृष्ण भगवद गीता में करते हैं। अध्याय 18, श्लोक 46, यतः प्रवृत्ति भूतानैन येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभिर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, he from whom all beings have come, and by whom this entire universe is pervaded. By worshipping him through your own natural work, a human being attains perfection. Swakarmana, through your own work, tamabhirchya, by worshipping him. This is the final seal of approval on the path of karma yoga. My friend, we have reached the end of this journey, but it is also the beginning of your own. The goal of karma yoga is not to get you a better afterlife, or to please some distant god. इसका लक्ष्य आपको कोई स्वर्ग देना नहीं है। The goal is to give you peace, freedom, and joy, right here, right now.
The goal is Vigatjwar, freedom from the fever of anxiety. The goal is Chit Shuddhi, the purification of your own heart and mind. स्वामी विवेकानंद ने हमें यही याद दिलाया जब उन्होंने कहा, Every duty is holy, and devotion to duty is the highest form of the worship of God. हर कर्तव्य पवित्र है, और कर्तव्य के प्रति समर्पण ही ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है. Your life is not a problem to be solved. Your life is a prayer to be lived. आपका जीवन एक प्रार्थना है जिसे आपको जीना है. So, do not wait for a special day or a special moment. Begin today. Begin now. With the very next action you take. Let every breath you take, every word you speak, every task you perform, be your offering. This is the path of Karma Yoga. This is the art of finding heaven, not in the sky, but in your own actions.